ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो है टॉर्क के बारे में किया। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड पीई साइन थीटा। इस पे बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 into 10 raised to power 9 coulomb meter is lying at an angle 30 degree in a uniform electric field of 5 into 10 raised to power 4 volt per meter or Newton per coulomb is the unit of. Find torque acting on it. सारी चीज दे रखी है, सिंपल सा फार्मूला आपके पास ये आ गया। टॉर्क आप निकाल लोगे 9 इंटू साइन 30 इंटू 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 न्यूटन मीटर और जूल इसकी यूनिट होती है टॉर्क की। ये कैलकुलेट आप अपने आप करेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास सिंपल सा आएगा कि भाई एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is lying in stable equilibrium. An electric dipole of dipole moment P is lying in stable equilibrium in an uniform electric field A if it is slightly displaced from its equilibrium position. Calculate its period of oscillation. If I be the moment of inertia about its centroid at this position, I be the moment of inertia of this dipole at this position. So we know torque is equal to P sin theta. If it is displaced from this equilibrium position to small angle, so restoring torque is minus P sin theta, negative sign shows for restoring torque. As theta is small, therefore restoring torque minus Pe theta. Everyone knows torque is I alpha. Torque I alpha. Alpha is minus Pe theta by I. And we know very well condition of angular SHM. Alpha is minus omega square theta. This is the condition of angular SHM. So equation 1 can be written as minus omega square theta is minus Pe theta by I, or omega square Pe by I. What is omega square? 4 pi square by T square is Pe I, और T आप ऊपर ले जाएंगे, T स्क्वेयर 4 पाई I स्क्वेयर I by Pe, और T is 2 pi. This is period of oscillation. तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल इसमें आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी
stored in a dipole, potential energy stored in a dipole placed in uniform electric field. कल आपने जैसे डाइपोल लिया था यूनिफॉर्म फील्ड में एट एन एंगल थीटा, डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? E at an angle theta. Work done by the field to rotate dipole is stored in the form of potential energy. Work done by the field to rotate dipole is stored in the form of potential energy in it. जो वर्क फील्ड कर रही है, वर्क कल आपने जैसे किया था, तो टॉर्क लगा रही, टॉर्क वर्क ही तो है, तो फील्ड टॉर्क क्यों लगा रही? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द डायपोल टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट वर्ड क्यों बोल रहे हैं एट एनी इंस्टेंट? टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, बिकॉज टॉर्क इज वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल टॉर्क का वर्क डन निकालते हैं, लास्ट ईयर वर्क पावर एनर्जी में आपने सीखा है कि जब भी हम वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल टॉर्क का वर्क डन निकालते हैं, वी डिवाइड द होल डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट वी फाइंड स्मॉल वर्क डन फॉर विच वी कंसिडर टॉर्क टू बी कांस्टेंट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, and then by integrating total work done is obtained. तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, small work done at this torque, if this dipole is displaced through d theta at this torque, small work done in displacing dipole through d theta at torque at this value of torque. So small work done is torque d theta or p.E sin theta d theta, integrating both sides, so therefore dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा p.E sin थीटा d थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 आप ले लेते हैं। सो दिस w p.E इज कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा d थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। आपको ये बेसिक कैलकुलस हमने 11th में सिखा रखी है आप लोगों को। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, और नेगेटिव पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क is stored in the form of potential energy, where negative sign shows decrease in potential energy or angular displacement. Decrease in potential energy or angular displacement. तो दिस वर्क कैन बी रिटन एज, यू से हम जनरली पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं दिस वर्क। सो पीई
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका पास वो आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। स्पेशल केस अगर वैसे ले लें हम, इफ थीटा 1 इनिशियली 90 डिग्री पे पड़ा और थीटा 2 को हम थीटा ले लें, देयरफॉर यू आप ले लेते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 को माइनस पी ई कॉस थीटा, और यू आपके पास माइनस पी डॉट ई आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में। थीटा 1 जब 90 डिग्री लिया वहाँ पे आपने जीरो पोटेंशियल, तो इस तरीके से किसी इंस्टेंट पे ये आप डेरिवेशन निकाल सकते हैं। इस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, if a dipole of dipole moment P is placed in uniform field E, calculate its work done in displacing the dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium. If an electric dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E, calculate work done in rotating a dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium. स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट करो। तो इस इक्वेशन में हम थीटा 1 क्या ले लेंगे 0 और थीटा 2 क्या ले लेंगे 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस पी ई कॉस 180 माइनस कॉस 0, अंदर क्या आ जाएगा माइनस पी ई -1 -1, तो वर्क डन यहाँ पे 2p आ गया। सी पॉजिटिव आया है, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव होता है। तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड जो एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क जो करेगा दैट विल इंक्रीज एनर्जी। तो देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल से अनस्टेबल में ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट हमने कल भी डिस्कस किया था जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल की कंडीशन बताए थे। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देखिए पीई माइनस पीई मिनिमम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2p मैक्सिमम। तो पॉजिटिव आने का यही मतलब है कि एक्सटर्नल टॉर्क इस पे काम कर रहा है, इट इज वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड।